So let's start with the revision of what we did in the last lecture. So in the last lecture we were focusing on to make faster cosine similarity algorithm. To make it faster, we decided that for particular query, so we won't calculate the TF-IDF. So this was one thing that we have decided. Then we have decided that if we have n documents, so we won't calculate score for all of these n documents. Since we need only k documents to give to the user, which may be 100 or top 100 results, and this n could be 1 billion. So we would look at a smaller subset to run our algorithm. A. So now from where A would come? So one way is whenever we are doing this conjunction, this was the last slide that where we stopped yesterday. So whenever we do the conjunction, we can pick up only those terms, those documents where both all of these terms are coming, and obviously where the query terms are coming, they are not going to be in billions, so they may be in 10,000 or so. So then we need to calculate score only for these, not for all the n values. Further, after calculating score, it might be possible that for some document, the cosine score may come 0, and for some document, it may be greater than 0. So we will put all those documents for which cosine score is greater than 0 into a heap sort. And from heap, we pick up these k documents. So this will eventually reduce our computation time. So this was we discussed in the last lecture that these kind of heuristics we can do. Now there was always a question that how to get perfect A. So in the last lecture also we discussed that it might be possible that these k documents, now these k documents which as per user's requirement, what user thinks is the best k document. So this A may not be having all those k documents. So that might be a possibility. So today we will see one of the way to pick up these k document. So that is the champion list. So we will create a champion list for each term in the dictionary. So whatever terms which exist in the dictionary and for which we have created index, for each term which is part of index, which is part of dictionary, we pre-compute the R document. The R are the some subset of documents with their highest weight in T. That is for earlier what we were doing is for each term we are having a posting list. In the posting list we have all the documents where that term exists. So if it exists in document 2, in 3, in 7, 9, 11, so it contains all the document where this term exists. So this posting contains all the document, ID of all the document where this term exists. But now what we are saying is from this posting, because a particular term may exist in million documents. So this posting can be may have the million entries. Out of those million entries, we will pick up those are entries, that is those are document which are very good for this term. So which are very good for this term, because even though this term exists in all these million entries, so posting contains all these IDs, but we want to pick up some R which is the subset of this. So which are very good for this term, and we call this as a champion list. So it is also known as, in some researchers call this as a fancy list or top documents. So for each term in the dictionary, for each term in the index, we pick up top
R document. Now this R could be even let's say 100. So top 100 document which are very good for this term. Even though actual index may contain all the documents where that term exists. So actual index में तो सारे के सारे index entries में maybe 1 million entries are there. But now we want to pick up those are documents which are very good for this term. So now this R has to be chosen at the index. What is the value of R, whether it is 100 or 200 or 1000. So obviously this has to be very less than K. So if you want final K, you want to show the 100 results to the user. So this R has to be very less. So it has to be, let's say, 50 or 70 or 80. So how number of results that you want to show to the user, this R need to be less than that. So whenever query happens, we are not looking now for full posting. We are not looking for all the document ID. We are only looking for this champion list. So only champion list is compared. So even though you have total billion documents, for one term that may exist in, let's say, million of entries, but we are looking, whenever we are doing query, we are calculating score only for this champion list. So this champion list has already been created at the time of building of index. So when we started building index, we also created this champion list. So now we know that for each term, we have to pick only these R documents. And we have to calculate score only for these R documents. And from these R documents, then we have to do the ranking only for these R documents. So our overall complexity is reduced. Earlier we were doing calculation for n document, which may be 1 billion. Now we are doing that for each term in the query. We pick up these R document, which may be even less than 100. And we are calculating cosine similarity for these R documents only. And then we show the result to the user based on their cosine similarity. So this having a champion list, so this reduces the overall complexity of the query time. So query time पे हमारा काफी time save हो गया. Only thing is कि champion list को भी store करके रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं. थोड़ी storage ज़्यादा लगेगी, but otherwise we have saved lot of time in calculating the cosine similarity at the query time. ये clear है सबको? Is it clear to everyone? Yes, sir. Now there are many questions that comes to mind, that how do champion list relate to index elimination? Last lecture we said that we keep on doing eliminate indexing based on the conjunction. So obviously champion list is when you are dealing with only less number of documents. So index elimination can also still be part of that, because whenever you do the conjunction, so you can always remove those documents where both the entries are not coming. So index elimination is used when we have more than one term, and when we do the intersection of the documents where both are coming. So this index elimination can be done on the champion list as well. So they can be used together. Now how it is to be implemented in inverted index? So it has to be separate. So it has to be separately mentioned. So this is one way. Inverted index, we know that for each term we have term ID, and then we have frequency, and then pointer to the postings. So हमारे पास पॉइंटर होता है जो पोस्टिंग लिस्ट है. पोस्टिंग लिस्ट में क्या है, वो सारे डॉक्यूमेंट के आईडीज हैं जहां पे वो टर्म एग्जिस्ट कर रही है, और ये सॉर्टेड ऑर्डर में होता है. सो अब चैंपियन लिस्ट को बनाना कैसे? ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ इंडेक्स क्रिएशन ही हमें चैंपियन लिस्ट बनानी पड़ेगी, बट चैंपियन लिस्ट को बनाने के लिए भी टाइम लगेगा. टू नो डैट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट गुड इनफ है फॉर ए पर्टिकुलर टर्म, वो फाइंड आउट करने में भी टाइम लगेगा. यानी कि इंडेक्स क्रिएशन अब आपकी थोड़ी सी हैवी हो जाएगी.
सो वी आर स्पेंडिंग टाइम एट द इंडेक्स क्रिएशन। अब चैंपियन लिस्ट को स्टोर कहाँ करना है? ये पोस्टिंग तो पहले से स्टोर्ड है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी वी नो दैट की इंडेक्स बना हुआ है। आइदर वी हैव अनदर पॉइंटर जो चैंपियन लिस्ट को अलग से पॉइंट कर रहा है, चैंपियन लिस्ट हमारी अलग से भी हो सकती है। और क्योंकि ये जो पोस्टिंग है ये हमने रखा हुआ है डॉक्यूमेंट आईडी के में सॉर्टेड है, डॉक्यूमेंट आईडी, यानी कि पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे होगा, फिर ये ऐसे होगा। ये इसलिए सॉर्टेड है क्योंकि मर्ज एल्गोरिथम हम जब हम कंजक्शन करते थे, मर्ज एल्गोरिथम हमने वैसे बनाया था। सो ये रेलिवेंस के अकॉर्डिंग सॉर्टेड नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट रेलिवेंस जो ज्यादा रेलिवेंट है वैसे सॉर्टेड नहीं, डॉक्यूमेंट आईडी से सॉर्टेड है। सो जहाँ तो इसको हम चैंपियन लिस्ट अलग से बनाए, जहाँ इसी को रेलिवेंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करें। सो रेलिवेंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट यानी कि इसकी एक और हीप बनाए, वो हीप रेलिवेंस के अकॉर्डिंग, यानी उसमें जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होगा वो सबसे ऊपर होगा, उस तरह से हीप बनाए। सो वट एवर वी विल डू, चाहे रेलिवेंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करें, वी हैव टू स्पेंड टाइम एट द टाइम ऑफ इंडेक्स क्रिएशन, वी हैव टू स्पेंड टाइम इन द एट द टाइम ऑफ इंडेक्स क्रिएशन। सो इंडेक्स क्रिएशन हमारा थोड़ा हैवी हो जाएगा। सो जब भी इंडेक्स क्रिएट कर रहे होंगे हमें चैंपियन लिस्ट को मेंटेन करना, स्टोरेज चाहिए, और उसको क्रिएट करने में भी टाइम लगेगा। टू फाइंड आउट विच आर द गुड डॉक्यूमेंट्स, आइदर चैंपियन लिस्ट कौन सा गुड डॉक्यूमेंट, ज्यादा कोई एक्सपर्ट बताए, ऑब्वियसली ह्यूमन एक्सपर्ट तो सभी टर्म का नहीं बता सकते। व्हाट वी कैन डू इज द टीएफ आईडीएफ के बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितना अच्छा है। सो जो डॉक्यूमेंट अच्छे होंगे, जिनका टीएफ आईडीएफ उस टर्म में के लिए अच्छा होगा, उनको हम अलग से निकाल देंगे। लेट से 8 डॉक्यूमेंट अलग से निकाल लें और उनके अलग से उनको सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है। तो ऑब्वियसली सॉर्टेड ऑर्डर में एक एरे में रखने का कोई मतलब नहीं है, हम एक हीप सॉर्ट में रख लेंगे, हीप में रख लेंगे, मिन हीप में है और मैक्स हीप में रख लेंगे। और ये पॉइंटर जो होगा चैंपियन लिस्ट वाला, ये उस हीप के रूट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा, यानी कि जो सबसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा उसको पॉइंट आउट करेगा। और जब भी मुझे 8 डॉक्यूमेंट चाहिए मैं उस हीप में से निकाल दिया करूंगा। सो पहले टर्म से भी निकाल लिए, फिर दूसरी टर्म के भी निकाल लिए, एंड देन वी उनके फिर आगे कोसाइन सिमिलरिटी निकाल ली, एंड देन उनको फिर सॉर्ट करके देन वी कैन रिप्रेजेंट इट। सो दिस होल जो हमारा सर्चिंग का प्रोसेस है चैंपियन लिस्ट से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट एट द क्वेरी टाइम जब क्वेरी चलेगी तब काफी फास्ट हमें मिल रहा है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट, ओनली फॉर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द चैंपियन लिस्ट। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. सो नाउ क्वालिटी स्कोर पे ये जितना भी जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, दिस हैपेंड इन लास्ट 20 इयर्स। सो रिसर्चर्स जब भी एक आइडिया आता था, जैसे चैंपियन लिस्ट का आइडिया आया, देन पीपल कम आउट विद मेनी मोर आइडियाज। सो ये आइडियाज को लोग और आर्गुमेंट करते रहते हैं। सो इवन इन योर कोर्स आल्सो भी हम इन्हीं आइडियाज को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब स्टैटिक क्वालिटी स्कोर, जब मैंने लास्ट स्लाइड में कहा था कि कैसे पता चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट बढ़िया है, सो आई टोल्ड का आइदर एक्सपर्ट बताए और वी कैन हैव TF-IDF. Now TF-IDF is a kind of metric where if 50% researcher likes it but 50% researcher dislike it, so it is just calculating term frequency and rarity of frequency. It is not something which understand the meaning of the document. And we know that there are many problems which may exist because of this. So earlier there were many people in the search engine optimization. ये आपने टर्म सुनी हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? Yes. तो आपने ये जैसे काफी फ्रीलांसर होते हैं, सो दे ट्राई टू, जैसे सपोज मैंने वेब पेज बनाया, आई वांट कि गूगल में आए, तो अर्लियर क्या होता था कि जैसे सपोज एक HTML पेज बनाया, अब HTML पेज में वो मेरी टर्म बार बार आए, तो व्हाट वी डू इज कि सपोज व्हाइट कलर का पेज है तो मैं व्हाइट कलर के फॉन्ट में ही वो टर्म कई बार लिख देता था। अब यूजर को तो नहीं दिखती थी, जो मेरा पेज देख रहा था, ह्यूमंस को तो वो व्हाइट कलर के ऊपर व्हाइट कलर में लिखा हुआ नहीं दिखेगा,
तो उसको ओड नहीं लगेगा, बट सेम टर्म मैंने कई बार रिपीट किए होते थे अपने HTML पेज पे, जस्ट टू इंक्रीज द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ माई पेज। अब क्योंकि जो भी सर्च इंजन के वेब क्रॉलर्स होते थे वो तो HTML निकालते थे, HTML के अंदर तो वो टर्म लिखी हुई थी, बट ओनली इट इज नॉट विजिबल इन द ब्राउजर बिकॉज इट इज ब्राउजर में उसका कलर हमने व्हाइट किया होता था। जहाँ कई बार मेटा टैग्स में भी, ऐसे टैग्स में भी वो टर्म रिपीट की होती थी ताकि ह्यूमंस को विजिबल ना हो बट क्रॉलर को HTML पेज के अंदर वो दिख जाए, तो टर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। तो इस टाइप के काफी लोग अपना पेज पहले 10 रिजल्ट में लाने के लिए ऐसा करते थे, एंड फॉर डूइंग दिस दे हायर द फ्रीलांसर पीपल जो ऐसा HTML पेज को चेंज करते रहते थे। बट दिस नाउ हैज स्टॉप्ड अभी बिकॉज वी आर नॉट ओनली रिलाइंग ऑन द स्टैटिक क्वालिटी स्कोर्स। सो सिर्फ TF-IDF के पेज पे नहीं कर सकते, हमें अठ्योटी भी चाहिए पेज की। वी आल्सो नीड द अठ्योटी ऑफ पेज। सो रेलेवेंस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन, अभी तो हमने देखा कोसाइन स्कोर के बेस पे, बट अठ्योटी ऑफ द टिपिकल क्वेरी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट। Example of a TOT signal is maybe for someone Wikipedia may be very जब भी आप रीड करते हो even human we say that okay Wikipedia पे so maybe it is more relevant as compared to other thing। जैसे आज कोई भी even human talk when somebody says कि हाँ भाई ये मेडिसिन कोविड में अच्छी है, so then another person will ask कि क्या सोर्स है तुम्हारा, कहाँ से पढ़ा तुमने। So someone would say I read from this journal or this newspaper। Even newspaper में भी अठ्योटी कम होती जा रही है, there are many fake articles। So or you would say कि नहीं मैंने एक पेपर पढ़ा है with many citation and this paper is recently in that journal। So अठ्योटी of a particular thing determines कि वो कितना उसकी वो relevant कितना है, कितनी relevance कितनी है, किसने कहा है ये बात। Suppose you say that ki, okay, this has been said by top doctor in a particular journal, in a paper, so people will start believing that because उस चीज की अथॉरिटी है। Similarly, Google ने भी अपना पेज रैंक एल्गोरिथम बनाया था। So पेज रैंक एल्गोरिथम लेटर ऑन डिटेल में करेंगे। So पेज रैंक एल्गोरिथम में भी अथॉरिटी के बेस पे था। So अथॉरिटी में क्या है कि कोई पेज कितना इंपॉर्टेंट है ये इस चीज से पता चलता है कि कितने इंपॉर्टेंट पेज उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पेज की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि कितने इंपॉर्टेंट पेज में उसका हाइपरलिंक है और वो कितने इंपॉर्टेंट पेजेस को पॉइंट आउट फर्दर पॉइंट आउट करता है। तो उसकी हब स्कोर, कितने पेज उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी हब स्कोर और उसकी अथॉरिटी, इन दोनों से डिटरमाइन करेंगे कि वो पेज कितना रेलिवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट बाय सिंपल TF-IDF। सो इन दिस वे व्हेन दिस स्टार्टेड, सो दिस वाज इवन दो ये 97 में स्टार्ट हो गया था, गूगल से पहले स्टार्ट हो गया था। देयर वाज HITS एल्गोरिथम, हाइपरटेक्स्ट इंड्यूस्ड टेक्स्ट सर्च सिग्नल एल्गोरिथम, ये पहले स्टार्ट हो गया था, बट ये दिस वाज मेड पॉपुलर बाय गूगल्स पेज रैंक एल्गोरिथम which is also published in the later half of 97 और ज्यादातर ये 98 में काफी जगह पे इंडिपेंडेंट जर्नल से पब्लिश हुआ। So at that time people have started looking at that on web। We need not to only look for term frequency but also for the authority। Before that authority जैसे मैंने बताया कि एक्सपर्ट बताते थे, तो Yahoo सर्च इंजन till then was based on that, very popular। Yahoo even 97 98 में I used to prefer Yahoo rather than any other search engine because if I have to look for any page, so those were categorized by a human expert, so those were very good। और वो ब्राउज करने पर सर्च नहीं करते थे हम। जैसे सपोज मैं पहले ऑटोमोबाइल सेक्शन में जाऊंगा, फिर कार के सेक्शन में जाऊंगा, फिर मे बी टोयोटा के सेक्शन में जाऊंगा, देन आई एम लुकिंग फॉर ए पेज वेयर इट एग्जिस्ट। सो in this way we browse the things rather than search the things। तभी वेब ब्राउजिंग एक टर्म यूज होती थी। तो इवन उस टाइम पे जो लोग लिखते थे हॉबीज क्या थी, हॉबीज में वेब ब्राउजिंग भी हॉबी आते थे, वेब ब्राउजिंग, वेब सर्फिंग, क्योंकि काफी टाइम वेब ब्राउजिंग या सर्फिंग में एक पेज तक जाने में लग जाता था।
अभी तो आप सर्चिंग करते हैं, यू नो दैट कि पहले कुछ रिजल्ट्स में यू विल गेट अ गुड पेज, बट एट दैट टाइम टू गेट टू अ गुड पेज एंड टू नो इंफॉर्मेशन, आपका 50% टाइम is wasted. I am saying wasted because you have to browse through that links to get to that page, which now do not happens. So यानी कि अब हमने जब चैंपियन लिस्ट भी बनानी है, we need not to only rely on these static quality score because expert can also give one time score. Expert हर वक्त स्कोर नहीं दे सकते, और जितने डायनेमिकली वेब पेज चेंज होते हैं, so this model of the expert is telling which page is good, so that model is going to fail, so which eventually fails in after these algorithm starts coming, and TF-IDF is obviously is not the only measure. So अठ्योटी को भी लेके आना था हमें अपने स्कोर में. अब अठ्योटी calculate karna for all the web pages, it is very difficult, so keep on doing it. So Google keep on crawling and keep on doing this, but eventually ये नहीं है कि जैसे वेब पेज चेंज हो गया उसका हम स्कोर चेंज कर देंगे. So ये periodically होगा, maybe after week or after 15 days or after 30 days we check that what is the theory of that page, whether it improves or decreases. So हमें calculate करनी पड़ेगी. So that authority of a page changes periodically, it doesn't change immediately, even though उसका content आप change कर सकते हो, but उसकी ranking, उसकी authority slowly change होती है. So authority को model करने के लिए, let's say there are many algorithms, we are not now right now going into that detail, वो हम next unit में करेंगे. So हर डॉक्यूमेंट की एक अथॉरिटी जो है that is independent from the query. क्वेरी कुछ भी हो, बट उस पेज की रेलिवेंस उस क्वेरी से इंडिपेंडेंट, उस टर्म से इंडिपेंडेंट, वेदर दैट उसके एक स्कोर है कि वो कितना रेलिवेंट है, कितनी अथॉरिटी है उसकी. तो उसकी एक अथॉरिटी हम 0 to 1 में लेके आएंगे. लेट्स से दिस इज डिनोटेड बाय GD, and from it is where from it is coming, it may be coming from PageRank algorithm or maybe even better algorithm. किसी एक एल्गोरिथम से एक वैल्यू आ रही है, सो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वेरी, वो क्वेरी से रिलेटेड नहीं है, वो उसकी अथॉरिटी बता रहे हैं. सो मे बी रिसर्च पेपर के लिए क्या हो सकता है कि जितनी साइटेशन हायर है उतना अच्छा रिसर्च पेपर है, नंबर ऑफ साइटेशन हायर है, यानी ज्यादा लोगों ने साइट किया है, तो दैट इज वेरी गुड रिसर्च पेपर. सो उसको हम 0 to 1 में ला सकते हैं. अब रिसर्च पेपर के लिए यू कैन इवन थिंक ऑफ फार्मूला फॉर दिस. सो आपको क्या लगता है रिसर्च पेपर के लिए कौन सा रिसर्च पेपर कितना रेलिवेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वेरी, क्वेरी को नहीं हम देख रहे, तो क्या उसके लिए फार्मूला होना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए? इम्पैक्ट फैक्टर उसका. यस सर इम्पैक्ट फैक्टर. आई थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा, थोड़ा सा लाउड बोलो. सर इम्पैक्ट फैक्टर. इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल, ठीक है. दिस इज वन. एक तो साइटेशन तो चलो हो ही गया, कितने लोगों ने साइट किया, प्लस एज साहिल टोल्ड की इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल. इम्पैक्ट फैक्टर तो उस जर्नल का होगा जिसमें वो पब्लिश हुआ है. जितने बढ़िया जर्नल में होगा उतना बढ़िया हो सकते हैं. एनी अदर क्राइटेरिया जो आपके माइंड में आ रहा हो? कोई और क्राइटेरिया जो भी माइंड में आ रहा हो? सपोज आपके पास 10 है रिसर्च पेपर्स हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा बेटर है. सो इसमें अब कई क्राइटेरिया हो सकते हैं. मे बी ऑथर, आपको लग रहा है कि ऑथर की अपनी, जिस ऑथर ने लिखा है, सो लेट्स से दैट इज वेरी गुड ऑथर, और वो ऑथर भी आपका, उसकी रेलेवेंस कितनी है, वो कितने अच्छे पेपर लिखते हैं, वो भी एक पार्ट हो सकता है. ऐसे करके आप ऐसा कोई बड़ा फार्मूला बना सकते हो. एंड सिमिलरली मे बी डेट, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जितना पुराना पेपर हो जाता है उसकी रेलेवेंस कम होती जाती है.
सो जितना रिसेंट है, अब जो रिसेंट है ऑब्वियसली अब कम लोगों ने सेट किया होगा, जो पुराना है मे बी अब जो कंप्यूटर साइंस में जो सबसे ज्यादा साइटेड पेपर है दैट इज ए प्रायरी एल्गोरिथम का पेपर, ठीक है। बट वो 1993 में आया था, अब उसकी रेलेवेंस कम हो चुकी है, उसके बाद उसको कई लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है। सो अभी आप सपोज उस फील्ड में एसोसिएशन रूल एनालिसिस के फील्ड में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो मे बी यू आर नॉट लुकिंग फॉर दिस पेपर, बट लास्ट 27 ईयर्स में तो इसकी कई मॉडिफिकेशन हो गई। सो फॉर यू some criteria which may work, or for some another person another criteria may work, so ये भी personalize हो सकता है, और which Google does it, Google आपके accordingly personalize कर देता है। जब भी आप सर्च करते हो Google Scholar में, Google knows that कि आपका प्रोफाइल अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो Google knows your profile and personalize कर देता है results that what is relevant for you। For example एक 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स मॉडल भी रेलेवेंट होगा, सो बोहर मॉडल भी रेलेवेंट होगा। बट सेम क्वेरी कोई करता है, रिसर्चर इन लेट्स से पीएचडी कर रहा है इस फील्ड में, उसको बोहर्स मॉडल रेलेवेंट नहीं होगा, उसके लिए मे बी द लेटेस्ट रिसर्च रेलेवेंट होगा। सो दैट्स व्हाई इस टाइप का जो भी स्कोर जो फार्मूला होगा, सो दीज हैव बीन इवॉल्व्ड, ये पूरे का पूरा एक अलग फील्ड है, हम कुछ स्टडी करेंगे आपके कोर्स में लेटर ऑन। और अभी आप मान के चलो कि दिस इज सम स्कोर व्हिच इज आल्सो अटैच्ड टू ए डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट के साथ ये भी एक स्कोर अटैच्ड है। अब जब भी हमने नेट स्कोर देखनी है, एक तो ये स्कोर आ रही है व्हिच इज कमिंग फ्रॉम योर फार्मूला, जैसे हमने एक किसी फार्मूले से निकाली है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वेरी है, और एक क्वेरी और डॉक्यूमेंट की कोसाइन स्कोर है। सो ये दो स्कोर को मिला के नेट स्कोर बनती है, और ये नेट स्कोर हम देखेंगे किसमें, सिर्फ चैंपियन लिस्ट में। सो नाउ इन दोनों को कंबाइन करके वी कैन यूज इट। नाउ देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन कि व्हाई सिंपल ऐड क्यों कर दिया, सो मे बी दिस कैन बी टेकन एज वेट, इसको वेट की तरह यूज करो। so there are many reason, या इसको आप ऐड ऑन करोगे तो there can be many formulas, which one is good enough, so there can be another debate on this कि भी कौन सा अच्छा होगा। so हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, उनको किस तरीके से यूज करना है, किसी को एक को वेट रखना है कि नहीं रखना है, so this always there are if and buts in this, so researcher use in different ways। Only thing in this line what I want to convey is that there are two things you need to consider। one is the authority score and another is the cosine similarity based on query। इनको यूज कैसे करना है, ये कई तरीके से कर सकते हैं, और जो भी रिसर्चर बताएगा कि इसको ऐसे यूज करना है, सम रिसर्चर में से है कि ओके जीडी यूज करो बट उस साइड लोग ले लो, सो वट एवर रिसर्चर, एक रिसर्चर कहेगा कुछ तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि इट वर्क्स। सो हियर ह्यूमन इंजीनियरिंग कीप ऑन वर्किंग, पीपल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग। सो वो यूजर की हैप्पीनेस है कि भी वो रिसर्चर का है कि किस डॉक्यूमेंटेशन पे वो काम कर रहा है, सो दैट इज वो वे है उनका कैसे यूज करते हैं। बट अल्टीमेटली अब के डॉक्यूमेंट जो हमें दिखाने हैं वो नेट स्कोर के बेस पे होंगे, नॉट ओनली फॉर कोसाइन सिमिलरिटी, सो दिस नेट स्कोर इज देयर। So cosine similarity for query, and now again this we are doing only for the champion list। हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे नहीं चेक कर रहे, और ये चैंपियन लिस्ट पहले से बना के रख ली। सो आवर आइडिया इज कि एक तो ऑर्डरिंग हम अथॉरिटी वाइज रखेंगे, चैंपियन लिस्ट में ऑर्डरिंग भी इसके अकॉर्डिंग होगी। सो दिस इज अ कॉमन ऑर्डरिंग फॉर ऑल द पोस्टिंग्स, सभी में ये इसके ऑर्डर वाइज ही पोस्टिंग होगी, यानी कि अगर गूगल जैसा सर्च इंजन है वो अथॉरिटी के बेस पे ऑर्डर करके रखेगा। देन वी कैन कॉन्करेंटली ट्रैवर्स क्वेरी टर्म्स पोस्टिंग फॉर पोस्टिंग इंटरसेक्शन। हमें पता है कि इंटरसेक्शन करना है, मर्ज करना है, तो रेलेवेंस बेस ऑर्डरिंग पे नहीं करेंगे, इसमें आईडी बेस सॉर्ट होगा।
तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना इजी होता है। तो यानी कि ये इंडेक्स अलग से बना के रखेंगे। सो अगर मैं रेलेवेंस बेस करूंगा तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट सेम है वो फाइंड आउट करना थोड़ा टफ हो जाता है। बट नाउ वी विल डू ओनली फॉर दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर चैंपियन लिस्ट में है, जो ऑर्डर इस वाइज उन्हीं को निकाल के उनकी ऑर्डरिंग करके उसके ऊपर ही चलाएंगे। And then we do the cosine score computation for only for those things. Obviously, this would eventually become very fast as compared to the our initial की सभी documents के साथ करना। So जैसे query होगी auto let's say it comes in document 2 1 best इसमें आता है, car इसमें आ रहा है 3 में, insurance इसमें आ रहा है, तो static quality ordered index। So इसमें जो document 1 2 3 respectively have static quality score, इनकी अपनी स्टैटिक क्वालिटी स्कोर है। सो जिसकी स्टैटिक क्वालिटी स्कोर ज्यादा है वो पहले आ रहा है। इनमें ऑर्डरिंग क्या है कि जिसकी क्वालिटी स्कोर ज्यादा है। सो ये वाली ऑर्डरिंग जो है ये अलग से इंडेक्स बना के रखना पड़ेगा। ये हमारा पुराना इंडेक्स जो हमारा आईडी वाइज था वो अलग से बना रहेगा। सो स्पेस हमारी अलग से रहेगी। सो वी हैव टू कीप दिस सेपरेटली। एंड ये जो जिसको हम स्टैटिक कह रहे हैं, so this changes periodically, it doesn't keep on changing। static इसलिए कह रहे हैं because ये query से independent है, but this changes periodically, maybe after 15 days Google again run the algorithm, it might be possible कि अब G1 की स्कोर थोड़ी improve हो जाए 0.4 हो जाए और G2 की स्कोर थोड़ी डिक्रीज होके 0.3 हो जाए। so that might be possibility। so after उसके बेस पे ये वाला इंडेक्स चेंज होगा, बट जो एक्चुअल आपका पोस्टिंग वाला इंडेक्स है वो सेम ही रहेगा। उसमें तो आईडी वाइज है, ये वाला इंडेक्स फिर चेंज करना पड़ेगा। एंड वी नो डैट जब भी ऐसा इंडेक्स चेंज करना है तो ऑब्वियसली काफी टाइम लगेगा। सो इंडेक्सिंग जब भी चेंज होगी, इंडेक्स में सपोज डॉक्यूमेंट 1 को आगे लेके आना, डॉक्यूमेंट 2 को पीछे लेके आना, दैट इज नॉट ए सिंपल ऑपरेशन। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दैट्स व्हाई अगर हमने हीप में भी रखा हुआ है स्टिल इट वुड टेक ए टाइम। हमें उनका हर डॉक्यूमेंट का अगर जिनका भी चेंज हो रहा है, हर डॉक्यूमेंट का स्कोर चेंज करके हीपिफाई प्रोसीजर, इफ यू रिमेंबर हीपिफाई प्रोसीजर यूज करके दोबारा से हीप को क्रिएट करना होगा फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। So maintaining this index is very costly, so it is not going to be simple। that's why iski periodicity it is not like every day we are doing it, we are doing it after few days। even Google does it after many days, even though Google has many processors। so why ordering under GD ordering, top scoring document हमें हमेशा ही पहले मिल जाएंगे। टाइम बाउंड एप्लीकेशन जब भी हमें टाइम कम चाहिए, सपोज 50 मिली सेकेंड में चाहिए, तो इवन वी आर नॉट गोइंग फॉर फुल ऑर्डरिंग, हम उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे। सपोज हमें 10 डॉक्यूमेंट ही चाहिए, हमारे पास 50 मिली सेकेंड है, सो वी कैन डू इट फॉर ओनली फॉर फ्यू डॉक्यूमेंट्स सो विच आर इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सो हमें सपोज पहले गूगल को पहले तो सिर्फ 10 रिजल्ट ही दिखाने हैं, सो गूगल में भी पिकिंग अप ओनली फर्स्ट 15 और 20 डॉक्यूमेंट है, उनकी स्कोर निकाल के उसी में से 10 दिखा रहा है। सो देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन दैट कि गूगल ने 20 उठाए और 21st डॉक्यूमेंट ही ज्यादा रेलेवेंट था। सो दैट कैन ऑलवेज हैपन, दैट कि गूगल इज अज्यूमिंग कि अथॉरिटी के बेस पे, उसके बेस पे वो उठा के आपको कोसाइन सिमिलरिटी के बेस पे दे रहे हैं। सो देयर इज ऑलवेज चांस कि आपका जो रिकॉल वैल्यू है, ये हम नेक्स्ट में भी देखेंगे, रिकॉल वैल्यू कम हो सकती है आपके रिजल्ट्स की। सो वेयर दीज डिफरेंट सर्च इंजन आल्सो वेरीज कि क्या हो सकता है, तो दैट मे पॉसिबल। सो अब जो भी हमारी चैंपियन लिस्ट है विद जीडी ऑर्डरिंग, वी कैन मेंटेन फॉर ईच टर्म। हम चैंपियन लिस्ट जीडी ऑर्डरिंग और इसको जो नेट स्कोर के बेस पे ही बनाएंगे, and top k results from only the document in these champion list we will seek। अब there was another concept कि champion list को भी डिवाइड कर दो। अब champion list में क्या हो रहा था कि वो भी बड़ी होती है, जैसे people से कि इसको भी डिवाइड कर दो हाई एंड लो में। for each term champion list के भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक हाई लिस्ट हो जाएगी,
लो लिस्ट। हाई एक तरह के चैंपियन का चैंपियन लिस्ट कह लो, या चैंपियन लिस्ट मेन लिस्ट है। सो जब भी क्वेरी होगी पहले तो हम हाई लिस्ट में देखेंगे। इफ यू गेट मोर देन के तो इट मीन्स कि हाई लिस्ट में हमें मिल गए टॉप के डॉक्यूमेंट्स। बट अगर हमें नहीं मिलते हाई लिस्ट के साथ, हमने कोसाइन सिमिलैरिटी देखी एंड इट कम्स वेरी लेस और हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, only then we go to low list. So low list is we go only when we need more documents or we are not able to find good documents in the high list. Obviously 99% time तो हमें high list में मिल जाएगा, only very few times 1% time we may go to low list. अब ये high low list जब भी बनानी है तो हम GD के साथ cosine score all of these things can be combined. So means for segmenting index into the two tiers, यानी कि पहले तो टर्म के साथ एक टियर में हाई लिस्ट होगी और हाई लिस्ट के ही लास्ट का जो पॉइंटर है, अगर वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट गोइंग टू द लो लिस्ट, और उसमें भी जो पॉइंटर है फिर वो कंप्लीट लिस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। कंप्लीट लिस्टिंग उसमें वो डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे जहां पे वो रहता है। सो हम एक हायरार्की सी मेंटेन कर रहे हैं, मल्टीपल टियर्स मेंटेन कर रहे हैं कि पहले इन डॉक्यूमेंट्स में देखा यहाँ नहीं मिला, फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में देखा वहां नहीं मिला, सो वी आर क्रिएटिंग द मल्टीपल टियर्स। नाउ दीज मल्टीपल टियर्स कैन बी क्रिएटेड इन डिफरेंट वेज। नाउ गूगल मेंटेन दिस चैंपियन लिस्ट एज ए टोल्ड अथॉरिटी वाइज भी करता है और रीजन वाइज भी करता है। सपोज चंडीगढ़ में जो सर्चिंग होती है या चंडीगढ़ रीजन में सर्चिंग होती है, इसकी चैंपियन लिस्ट अलग से हो सकती है, इसके इंडेक्स इसका टीयर्स अलग से हो सकते हैं। सो इस रीजन की लिस्ट अलग से होंगी और मे बी यूजर वाइज भी हमारी कैश के बेस पे अलग अलग लिस्ट होंगी। सो अब ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स होते जा रही है, क्या क्या होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू सम अप ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, हम ये जो भी अभी तक पढ़ा है इसको सम अप करके एक फाइनल सर्च इंजन को करना क्या चाहिए, कैसे इंडेक्स बनना चाहिए, वी विल ट्राई टू सम अप दिस थिंग्स। क्योंकि हमने चैंपियन लिस्ट बनाई, चैंपियन लिस्ट में भी फिर मैंने कहा कि हाई लो बना लो, फिर वो हाई एक टियर वाइज होगी, फिर हाई लिस्ट भी रीजन वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। सो देयर आर आई कीप ऑन एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड आपका इंडेक्स कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मल्टीपल होता जा रहा है। सो वी नीड टू सम अप द थिंग्स। So next lecture में we will try to sum up all these concept ताकि हमें एक final picture दिखे। So that we will see in the next lecture। कोई डाउट हो आप सबका किसी का?